উদ্বেগজনক খবৰ জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে। এগৰাকী সাংসদৰ মন্তব্য এতিয়া দেশজুৰি ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। সাংসদগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে দেশত সংখ্যালঘুৰ ওপৰত প্ৰতিদিনেই আক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে। সংখ্যালঘুৰ ঘৰ বুলডোজাৰেৰে ভাঙি দিয়াটো যেন এতিয়া সহজ হৈ পৰিছে। সংখ্যালঘুৰ ওপৰত ইমান অত্যাচাৰ, ইমান অন্যায় অবিচাৰৰ পাছতো নিশ্চুপ হৈ আছে শাসনাধীন দল তথা চৰকাৰ। সংখ্যালঘুৰ ওপৰত কোনে প্ৰতিদিনে এই আক্ৰমণ বৃদ্ধি কৰিছে, সাংসদ সদনত কিদৰে সাংসদগৰাকীয়ে গৰজি উঠিছে, প্ৰতিটো তথ্য আছে জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত দেশত প্ৰতিদিনেই সংখ্যালঘুৰ ওপৰত বাঢ়িছে হিংসা, অত্যাচাৰ, অন্যায়, অবিচাৰ। দেশত মুছলমানৰ ঘৰ বুলডোজাৰেৰে ভঙাটো যেন এতিয়া সাধাৰণ কথা হৈ পৰিছে। সংখ্যালঘুৰ ওপৰত হিংসা বৃদ্ধিৰ পাছতো নিশ্চুপ শাসনাধীন চৰকাৰ। ধৰ্মীয় পৰিচয়ৰ ভিত্তিত মুছলমানক টাৰ্গেট কৰি লোৱা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে সমাজবাদী পাৰ্টিৰ এগৰাকী নেত্ৰীয়ে। সংবিধানক অৱজ্ঞা কৰি উচতনিমূলক বক্তব্য, বুলডোজাৰ চলোৱা হৈছে। আইনৰ নামত চলি আছে জংঘল ৰাজ। সংখ্যালঘুক সুৰক্ষা সন্মান দিয়াটো চৰকাৰৰ দায়িত্ব হ'ব লাগে বুলি মন্তব্য কৰিছে নেত্ৰীগৰাকীয়ে। সদনত মুছলমানৰ ন্যায়ৰ দাবীৰে হুংকাৰ সাংসদ ইকৰা চৌধুৰীৰ। সাংসদ ইকৰা চৌধুৰীৰ মন্তব্যৰ পাছতে দেশজুৰি ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। সদনত সমাজবাদী পাৰ্টিৰ নেত্ৰী ইকৰা চৌধুৰীৰ ভাষণক লৈ ব্যাপক চৰ্চা চলিছে। এইখন দেশত প্ৰতিদিনেই সংখ্যালঘুৰ ওপৰত আক্ৰমণ, অন্যায়, অবিচাৰ, হিংসা বৃদ্ধি পাইছে বুলি মন্তব্য কৰিছে। দেশত মুছলমানৰ ঘৰ বুলডোজাৰেৰে ভঙাটো সাধাৰণ কথা হৈ পৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে। সংখ্যালঘুৰ ওপৰত আক্ৰমণ দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে বুলিও তেওঁ বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে। ধৰ্মীয় পৰিচয়ৰ ভিত্তিত মুছলমানক বাৰে বাৰে টাৰ্গেট কৰি লোৱা হয়। ইকৰা চৌধুৰীৰ মন্তব্য এতিয়া দেশজুৰি ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে। ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ পৰিচয়ৰ ভিত্তিত মুছলমানৰ ওপৰত বাঢ়িছে অত্যাচাৰ। দেশৰ সংখ্যালঘুক সন্মান, সুৰক্ষা দিবলৈ পাহৰিছে শাসনাধীন চৰকাৰ। সংখ্যালঘুৰ হকে গৰ্জন এইবাৰ সাংসদৰ। ইকৰা চৌধুৰীৰ মন্তব্য এতিয়া দেশজুৰি ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি পোনে পোনে ইকৰা চৌধুৰীৰ মন্তব্য আহি পৰিছে। আমি পোনে পোনে সদনত কিদৰে গৰজি উঠিছিল, সৰব হৈছিল, প্ৰতিটো তথ্য আহি পৰিছে। আমি পোনে পোনে মন্তব্য শুনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। लेकिन आज ऐसा पर इसे चलाने वालों का ईमान गुम हो गया है। आज हिंदुस्तान में हर वर्ग को किसी न किसी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, मगर अल्पसंख्यक खासतौर पर मुसलमानों पर जो कहर टूटा है वो किसी से छुपा नहीं है। ये लोग सिर्फ अपने मजहबी पहचान की वजह से निशाने पर हैं। संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति या किसी और वजह से भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन हकीकत इसके उलट है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि हेट स्पीच, मॉब लिंचिंग, बुलडोजर द्वारा घरों को गिराने की घटनाएं आम हो गई हैं, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, जहां ऐसा लगता है जैसे कानून के नाम पर जंगल राज चल रहा हो। संभल में जो हुआ वो सबके सामने है। पुलिस के संरक्षण में निर्दोष लोगों की हत्या की गई और सरकार ने चुप्पी साध ली। अल्पसंख्यकों पर हिंसा बढ़ती जा रही है, मगर सत्ता में बैठे लोग या तो आंखें मूंदे हुए हैं या फिर इन घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। हद तो तब हो जाती है जब न्यायपालिका की बात भी अनसुनी कर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग पर 11 सूत्रीय निर्देश जारी किए थे। इसमें साफ कहा गया था कि राज्य सरकारें और पुलिस इस तरह की घटनाओं को रोकने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन आज भी इन निर्देशों पर अमल नहीं हो रहा है। हाल ये है कि मॉब लिंचिंग को रोकने की बजाय सत्ता में बैठे लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। उनकी जुबान से ऐसी बातें निकलती हैं जो नफरत को और बढ़ावा देती है। ये अशांति अब इतनी गहराई तक फैल चुकी है कि हमारे समाज के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। साल की शुरुआत में ही कई राज्यों में दुकानदारों को अपने नाम बोर्ड पर लगाने के लिए मजबूर किया गया। इसे सेहत और सुरक्षा के कानूनों का हिस्सा बताया गया, मगर असल मंशा कुछ और थी। ये कदम खास तौर पर मुसलमान दुकानदारों को निशाना बनाकर उठाया गया ताकि उनकी रोजी रोटी पर चोट की जाए। पिछले हफ्ते मुरादाबाद में एक मुस्लिम डॉक्टर को
हिंदू बहुल्य मोहल्ले में घर खरीदने पर विरोध झेलना पड़ा। वजह बताई गई कि इससे मोहल्ले की सामाजिक शांति बिगड़ जाएगी। अब आप ही बताइए, क्या ये वजह सही है, जायज है? असल में ये छोटी बड़ी घटना इस बात का सबूत है कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले बयान और नीतियां हमारे समाज को अंदर से खोखला कर रही है। उत्तर प्रदेश में यति नरसिंहानंद ने बेहद घटिया बयान दिया, लेकिन सरकार इन बयानों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हेट स्पीच न केवल जनमानस के विचारों को प्रदूषित करती है, बल्कि इससे अब संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को भी प्रभावित कर दिया है। अभी हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के माननीय न्यायाधीश ने ऐसे बयान दिए जिसका संज्ञान खुद सुप्रीम कोर्ट को लेना पड़ा। संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 ने अल्पसंख्यकों को उनके मजहबी और सांस्कृतिक हक दिए हैं ताकि वो अपनी पहचान को बचा सके और अपने संस्थान चला सके, लेकिन आज उन्हीं हकों पर हर तरफ से चोट की जा रही है। वक्फ जैसे बिल लाकर उनके धार्मिक अधिकारों को छीनने की कोशिश की जा रही है। आज अल्पसंख्यक समुदाय को संविधान द्वारा दिए गए अपने बुनियादी अधिकार पाने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। ऐसे कई मामले अदालत ने न्याय देकर संविधान की रक्षा की है, लेकिन अदालती प्रक्रिया में जो समय लगता है उसकी वजह से देश के सामाजिक ताने बाने को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। मिसाल के तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2004 के मदरसा एक्ट को रद्द कर दिया था, जिससे मदरसों के संचालन पर सवाल उठे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इस फैसले को पलट दिया और एक्ट को वैध करार दिया, लेकिन इस प्रक्रिया में जो समय लगा उसने अल्पसंख्यकों को बेचैनी और संघर्ष के दौर में डाला है। इसी कड़ी में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 भी आता है और कई अन्य अधिकार, उन्हें भी इसी तरह अदालती लड़ाइयों में उलझाया जा रहा है। ये स्थिति न केवल अल्पसंख्यकों के अधिकारों की राह में रुकावट है, बल्कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड जैसी कहावत को सिद्ध करती है। मैं इस सदन से दुनिया भर के अल्पसंख्यकों की आवाज उठाना चाहती हूँ, खास तौर पर हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है वे दिल को गहरे तक चोट पहुंचाने वाला है। उनकी जान माल की हत्या की जा रही है। बांग्लादेश हो या हिंदुस्तान हो या कोई और देश, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, इज्जत और अधिकारों की हिफाजत हर सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैं इस सदन से अपने देश के अल्पसंख्यकों के साथ बांग्लादेश के पीड़ित अल्पसंख्यकों की आवाज को एक साथ उठाना चाहती हूँ। ये वक्त की पुकार है कि हम सब मिलकर ये सुनिश्चित करें कि किसी भी इंसान को उसकी पहचान या मजहब के कारण डर कर जीने पर मजबूर न होना पड़े। जहाँ हक छीने जाते हैं वहाँ अमन खो जाता है। ये बात हर सरकार को समझनी चाहिए। अगर हम सच में अपने संविधान का सम्मान करना चाहते हैं तो हमें नफरत और भेदभाव को खत्म करना होगा। हमें ये दिखाना होगा कि ये मुल्क हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म और हर समुदाय का है, और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक संविधान की आत्मा सिसकती रहेगी। सर, अपनी बात को खत्म करते हुए मैं एक शेर अर्ज करना चाहती हूँ। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं। लेकिन अगर इस सदन में बैठे हम सभी सदस्य ये ठान ले कि हमें संविधान के मूल्यों को लागू करना है और उसे लागू करने का प्रयास करें, तो वह सुबह जरूर आएगी जिसके लिए लाखों भारतवासियों ने अपने जानों की कुर्बानी दी थी। श्री हनुमान बेनीवाल जी, श्री हनुमान